أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جملہ اسمیہ کے 2 حصے پڑھ چکے ہیں۔ باذن اللہ ہم جملہ اسمیہ کا ایک اہم جز پڑھنے لگے ہیں۔ انا کا استعمال، انا و اخوات انا کا استعمال جملہ اسمیہ میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو فوکس کر دیتا ہوں، آپ کا ذہن ایسے اس طرف آ جانے کے لیے۔ جملہ اسمیہ کے 2 اہم جز ہوتے ہیں۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا وہ اہم کردار کے متعلق جو اطلاع دیتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اعرابی حالت سے مبتدا ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع حالت میں ہوتی ہے۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر بھی عموماً نکیرہ ہوتی ہے، لیکن مبتدا اور خبر کے اندر یکسانیت ہوتی ہے 2 چیزوں میں: عدد یعنی نمبر، واحد تثنیہ جمع، اور دوسری چیز مذکر و مؤنث جنس۔ یہ ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ جنس تو انا جو ہے، انا کے مختلف نام ہیں۔ اس کو تو کہتے ہیں حرف توکید و نصب، ایک نام ہے، اور مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں اسے۔ انا جیسے ہے اس کے کچھ بہنیں بھی ہے۔ اخوات کا مطلب ہے بہنیں، تو انا و اخوات انا، انا اینڈ ہر سسٹرس، یہ گروپ لیڈر جو ہے انا ہے۔ انا کی جو چال ہے، چلن ہے، اسی پر باقی کی بہنیں بھی چلیں گی۔ تو انا کے قواعد ہم اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آنے والی اخوات جو ہے اس کی بہنیں، ان کے بھی قواعد آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی اسم کا مؤنث ہونے کی وجہ عمل حالت کسی بھی اسم کو نسبی حالت آنے کے لیے اس کی ایک وجہ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، انا و اخوات۔ تو انا کی ایک خاص بات ہے کہ انا اپنے امیڈیٹلی جو بعد میں اسم آتا ہے اس کو منصوب بنا دیتا ہے، یعنی نصب کا اعراب لگا دیتا ہے۔ تو انا و اخوات و انا سب اسی طرح چلیں گے، یعنی جملے اسمیہ میں شروع میں انا آئیں گی اور انا کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے اعرابی حالت تبدیل کرے گی انا۔ تو انا ایک عامل حرف ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم پر عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اس کی حالت نصبی بنا دیتا ہے۔ یہ تمام تینوں بھی اس کی جو تمام بہنیں ہیں وہ بھی سب اسی طرح سے اسی طرز پر چلتی ہے۔ یہ انا اور اس کی بہن ہے۔ بڑی بہن انا ہے، پھر انا ہے، لعلہ ہے، لاکنہ ہے، کا انا ہے اور لیتا ہے۔ کل ملا کر یہ 6 بہنیں، اور ان کی باس جو ہے انا ہے۔ تو حرف مشبہ بالفعل اس کا نام بھی ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں۔
तो एक एक करके अब इंशाअल्लाह देखिए। तो ये इबारत देखिए जो बोर्ड पे आ रही है, ये जुमला इस्मिया है। क्योंकि जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा होना जरूरी है, और मुब्तदा मारिफा होगा और रफा हालत में। यहाँ पे लफ्ज जलाला है और पेश लेकर आ रहा है, इसका मतलब रफा में है। और यहाँ पे गफूरुन है, ये खबर है, ये नकीरा है, और ये भी रफा हालत। अल्लाह गफूर है, माफ करने वाले। अब इसके ऊपर हम इन्ना का इतलाक करेंगे, अप्लाई करेंगे इन्ना को हरफे तौकीदिन व नस्बिन। ओरिजिनल जुमला है अल्लाह गफूर रहीम, गफूरुन और रहीमुन, ठीक है। तो ये जुमला है कुल मिलाकर, जिसके अंदर पहला हिस्सा लफ्ज जलाला है और वाक़ई की खबर है और हालत रफा में है। जब इस पर इन्ना दाखिल होता है तो अल्लाहू से एराबी हालत बदल कर अल्लाह होगा। तो इन्ना सिर्फ अपने बाजू में आने वाले इस्म पर, यानी जो पहले मुब्तदा था अब वो मुब्तदा नहीं कहलाता, अब वो इस्मो इन्ना कहलाता। तो इन्ना अपने खबर पर कोई काम नहीं करेगी, खबर का एराब जैसे था वैसे ही रहेगा। सिर्फ मुब्तदा जो इस्म है उसका एराब रफा से बदलकर नस्ब हो गया है, हालत नस्ब। और ये जो पहले था हालत रफा जैसे कि वैसा है। तो इल्ला का जो इस्म है उसको अब मुब्तदा नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं इस्म इन्ना, और खबर को कहते हैं खबर इन्ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही सेम जुमले फिर से लिखा हूं, अल्लाह गफूर और इन्नल्लाह गफूर, यानी खबर पर कोई असर नहीं करेगी इन्ना, लेकिन इसका पहचानने का बोलने का तरीका बदल गया। इसमें जलाला अब बन गया है इसमें इल्ला, और खबर बन गई है खबर इल्ला। इसके मुतालिक क्या लिखा है देख लीजिए। इल्ला के मुख्तलिफ मीनिंग्स है, सचमुच है, यकीनन है, बेशक है, ये तमाम चीजें इंग्लिश में, लेकिन कोई भी मायने कंप्लीट नहीं है। और इल्ला का इस्तेमाल सिर्फ जुमले इस्मिया में होता है। और इल्ला ऐसा हर्फ है जो जोर देने के काम में आता है। कभी कभी इल्ला के कोई मायने भी निकलते नहीं, लेकिन इल्ला रहता है। वो इसलिए है कि इल्ला के तीन अहम फायदे हैं। एक तो जुमले में खूबसूरती पैदा करेगा, नंबर दो यकीनन बताएगा, सचमुच बताएगा, और तीसरा इसका फायदा यह है कि किसी का जहन आपके बोलने पर नहीं है, उसका जहन मुंतशिर करके आपके तरफ खींचने के लिए भी इल्ला लगाया जाता है। मतलब अरे मैं क्या बोल रहा हूं इस पर ध्यान दो, ऐसा बोलने के लिए भी इल्ला लगा। अब समझे? तो तीन वजह से इल्ला। एक तो जुमले में खूबसूरती पैदा हो जाएगी, नंबर दो जोर देगा वो, ताकीदी उसलुक पैदा होगा, और तीसरा किसी का जहन उस तरफ नहीं है तो उस तरफ जहन भी आ जाएगा। ये तीन चीजें हैं। आगे चल के जब कोई वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जहन अपने तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है।
यहाँ पे तो पहले हम इन्ना को यहाँ पे देख लीजिए, मुफरद इस्म पर लगाएंगे। मुफरद यानी के तन्हा। इन्नल मोमिनूना था, क्या था? मोमिना है, मोमिन। अल मोमिना, अल मोमिनू, क्या क्या था? अल मोमिनू, अल मोमिना, अल मोमिनी। ठीक है, तो ये तीनों हालत में बदलता है मोमिन। अल की वजह से मारिफा है, इन्ना लगाने से मोमिनू का क्या बन गया? अल मोमिना बन गया। ठीक है भाई, समझ आया? कैसा पढ़ेंगे? इन्नल मोमिना। मुसन्ना पे कैसे लगाएंगे? देखिए, आप जानते हैं कि मुसन्ना का मोमिनानी था। मोमिनानी, मोमिनीना, मोमिनी, आनी, ऐनी, ऐनी। ठीक है, मुसन्ना का याद है ना? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। ठीक है, और मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैन। तो यहां पर जब इन्ना दाखिल हो गया है दो पर, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपके सामने बहुत बारीकी से बताई। मुस्लिमाने में अलीफ आपको बताता है कि ये दो का सेगा है, और या बताती है ये दो का सेगा है, लेकिन नस्बी और जर्री दोनों में से कोई भी एक। याद रहेगा? फिर से बताता है। मुस्लिमुन नकीरा है, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, ये तीनों तरीके से बदल गया। अब इसको मारिफा करके बताओ। अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, ये वाहिद हो गए। अब तस्निया में नकीरा है, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैन। तो यहाँ पर जो है, पहले में जो देखे थे आपने, ऐराबी तब्दीली हरकत से नजर आ रही थी। आप मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमिन, ये हर्फी तब्दीली आती है। जब तस्निया में और जमा में देखेंगे तो आप लफ्जन नंबर आपको पता लगता है। मुस्लिमाने क्या है? वहां पे अलीफ आपको बता रहा है कि यहां पर इन्हें मरफू हालत पे है और तस्निया है। अब इसकी तब्दील शुदा हालत है मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी में अलीफ हटकर या आ गई है, या बता रही है हमें कि यहाँ पे तस्निया का सेगा है, और इसके दो सीगे सेम होते हैं, जर्री और नस्बी। और जमा का सीगा याद करो, अपने सीखे थे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, वो भी आएगा अभी। तो यहाँ पर जब आप मुस्लिमाने को बदलेंगे तो इन्ना लगाने के बाद मुस्लिम नहीं हो जाए। तो आप बोलेंगे इन्ना का इतलाक होने से, अप्लाई करें इन्ना को इस इस्म पर, तो वो मरफू था पहले, मुस्लिमाने था, अब मुस्लिम ही नहीं हो। ठीक है, हालत नस्ब है। ठीक है, जर्री और नस्बी सेम रहता। अब यहाँ पे देखो, मुस्लिमूना था, जमा क्या रहता है? मुसलमान जमा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इन्ना दाखिल होने से ऊना जाकर यहां पर भी ईना है। ये तीनों को भी आप बहुत अच्छी तरह से नोट करके रखो। तो इन्ना दाखिल होने से क्या चेंज होता है? इन्ना का इस्म जो है, जिसे पहले हम मुब्तदा कह रहे थे, अब उन्हें इस्मो इन्ना हो गया। और इन्ना का नाम क्या है? हर्फे तौकीद व नस्बिन, अपने बाजू आने वाले इस्म को तब्दील कर देता है। ये आपको अच्छी तरह से याद में रहना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे इन्नल इंसान हो गया, क्या हो गया? इंसानू था, अल इंसानू था, क्या बन गया? हाँ, लफी खुसरन। तो यहाँ पे फिलहाल अपन यही तवज्जो देंगे, बाद में आगे जाएंगे। ये इन्ना का इस्म है, और इन्ना इस पर जुमला इस्मिया है। इंसान है बहुत बड़े खसारे में, कैसा था? ये इन्ना निकाल दो, क्या होगा? अल इंसानो लफी खुसरन। इंसान है, ये ला जो है, ला भी एक
اسی طرح سے انا کا بھائی ہے نہیں، انا کا بھائی ہے، اور انو بھی جو ہے اسی طرح تاکید پیدا کرتا ہے. اب یہاں پہ لا لگا رہے، اس سے بہت بڑا خسارے میں ہوتا ہے. اب یہ لام جو ہے پہلے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آگے چل کر دیکھیں گے ہم. فی الحال اپنا فوکس کیا انا پہ ہے. لام تاکیدی لام کو باتیں پڑے گی، وہ ابتدائی لام ہوتا ہے. کیا رہتا ہے وہ؟ انہیں بھی انا کے جیسے ہی کام کرتا ہے، لیکن ویجیٹیرین ہے، انہیں کسی کو تبدیل نہیں کرتا. لام کیا کرتا ہے؟ کسی کو نہیں کرتا. لیکن انا جو ہے نان ویجیٹیرین ہے، انہیں تبدیل کر دیتی ہے. ہاں، رفع کو نصب بنا دیتی ہے. تو یہاں کیا بن گیا؟ ان الانسان لفی خسر. تو بولو بے شک انسان ہے بڑے خسارے میں. بڑے خسارے. سمجھے؟ ہاں، اب دیکھو یا ان کا، اب ان ہے، اب یہ کا نہیں ہے، اصل میں انتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں. اب انا کے ساتھ جب متصل ضمیر لگے گی تو وہ کون سی ضمیر لگے گی؟ مرفوع شکل میں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ نسبی شکل میں آئے گی. تو اپنی نسبی شکلیں کیا کیا تھی؟ ہوا کا ہو، ہما کا ہما، ہم کا ہم، ہیا کا ہا، ہما کا ہما، اور ہننا کا ہننا، انتا کا ہما کم، ہی کما کننا، اور ای نا. چلو انا کے ہم صیغے دیکھ لیتے. انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہننا. اب سامنے والے حاضر کے صیغے دیکھو. انا کا، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا، انی، انا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پہ جو کا آیا ہے وہ اوریجنلی کیا تھا؟ آپ نکال دیں گے اس کو تو کیا تھا وہ؟ ہاں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ تھے صاحب پہلے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل سیپریٹ آنے والی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. تو یہ ہم کٹ کر دیتے ہیں ابھی فی الحال، اور یہاں پہ لکھتے انتا لمن المرسلین. انتا یعنی کہ تو ہے بے شک، تو ہے بے شک کیا ہے؟ پیغام پہنچانے رسولوں میں والا. سے، رسولوں میں سے. ہاں، مرسلین کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، میسج پہنچانے والا، وہ مطلب میسنجر. تو یہ انتا تھا، لیکن انتا کو کیا کرے اپن نے یہاں پہ؟ یہ انا آ گئی. انا نے کیا کری؟ آ کے اٹیک کرتے جنہیں کیا بن گیا؟ کا بن گیا. سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کسی کو بھی لا لے سکتے آپ، اور اس کو اس کے حساب سے ہو. اگر ہم نے ہوا کی ضمیر لگا تو کیا انا ہو جائے گا، اور اگر ہیا کی ضمیر آئی تو انا ہا، اور خود کی ضمیر آئی ہے تو انی، اور نحنو آیا تو نا. ایسا اننا. بدلتے ہیں. کیوں بدلے گا؟ یہ نسبی بننا پڑے گا نا. تو اپنے پاس میں پورا نسبی چارٹ ہے. وہ ہوا ہم کی بجائے کیا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا ہما کم، کی ہما کننا، یا نا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا یہ؟ انکا لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہے یا میسنجرز میں سے ہے. چلیے اب ہم اور تھوڑا سا آگے کرتے ہیں. استاد جی یہ یہاں سب پر ہم من المرسلین ہے نا، یہ مرسلین حالت جر میں ہے نہیں، من حرف جار مجرور، یہ دونوں مل کر انا کی خبر ہوگی.
देखो बेटा सुनो, मैं आपको जरा बता देता हूँ। इन्ना दिख रही है, जुमला इस्मिया में आई है, इन्ना का इस्म अंता है, अंता तब्दील होकर नस्बी बन गया, तो ये हो गया इन्ना का। अब यहाँ पर इन्हें जो है, ये पूरे दमायर जो होते हैं मबनी होते हैं, मबनी रहने से महल्ली बोलेंगे। क्या बोले? महल्ली नस्बी नहीं। महल्ली यानी कि जो भी मबनी होता है उसकी आपको हरकत नजर नहीं आती, और हरकत नहीं कि मबनी में कहा रहते, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? महल्ली नस्बे। ठीक है, अब यहां हो गया। अब ला आ गया, ला तो अपनी और ताकीद पैदा करने के लिए, लेकिन मिन जो आ रहा है हर जगह, मिन ने क्या करा? मुरसलून, क्या था? मुरसलून था। तो ये मिन ने करने से नो जर में आ गए। तो बोलो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो मुरसलूना, मुरसलीना, मुरसलीना, ये जर हालत में आ गए। बहुत अच्छा। तो अब आप कैसा पुकारेंगे? इन्ना का इस्मो इन्ना का है, और इन्ना की खबर, ये पूरा जुमला पे तरीके, ये शिव जुमला है, लमिनल मुरसलीन। ठीक है, ये खबरो इन्ना हो गई, येलो में दिखने वाली, ब्लू में दिखने वाली इस्मो इन्ना। माशा नहीं हो सकता। चलिए पहला जुमला देखिए, हामिद। इन्ना नहीं है, समझो यहाँ पे इन्ना नहीं है, समझ के तो क्या हो जाएगा? हामिदुन तालिबुन, तो मुफरद हो गए दोनों भी। हामिद है एक, तालिब इल्म जुमला इस्मिया है। इन्ना से मल्टीप्लाई करो इसको, इन्ना हामिदन तालिबुन, बेशक हामिद है एक तालिब इल्म। अच्छा चलो आयरा भी इसकी जो है, हम जो है ग्रामेटिकली इसकी एनालिसिस करेंगे। इन्ना बोलो हरफे तौकीदिन व नस्बिल, और इन्ना ने इसकी आयराबी हालत तब्दील करके नस्ब दे दिया, इसलिए ये हो गया इस्मो इन्ना, और ये खबर इन्ना। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है भाई। अब जरा यहाँ पे देखिए, हामिदुन, इसको छोड़ दो। हामिदुन फिल फस्ली, हाँ हामिद हो गया, ये हामिद हो गया अपना मुब्तदा। ठीक है, पहले कौन सी? रफा हालत में, हामिदुन रफा हालत में था। हामिदुन ओरिजिनली रफा हालत में था, क्योंकि मुब्तदा हमेशा रफा होता है और मारिफा होता है। हाँ भाई। अब ये फील फसली क्या हो गया भाई? मुत्तालिक़े खबर हो गई है, ये तो यहाँ पर खबर नहीं है। कौन है ये? मुत्तालिक़े खबर। मुत्तालिक़े खबर क्या बनती है? हाँ, कायम मुकाम खबर। माशाअल्लाह। तो अब इल्ला से आप मल्टीप्लाई करो, इल्ला हामिदुन से जाके इल्ला हामिदन फिल फस्ली हो, बेशक हामिद है क्लास में। अब जरा यहाँ आ जाओ, फिर से इल्ला को निकाल दो। हामिदुन अमामल मदरसी, अमामा एडवर्ब है, अमामा क्या है? ज़र्फ है। ज़र्फ, ज़र्फ बोले तो एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ज़र्फुल मकान है। दो होते हैं एडवर्ब, दो होते हैं, ज़र्फुल मकान यानी जगह बताते हैं, और ज़र्फ ज़मान यानी कि वक्त बताते हैं। तो यहाँ पर इन्हों जगह बता रहे हैं। अमामा का मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। हामिदुन कहाँ है? स्कूल के सामने है, मुदर्रिस के सामने, सॉरी। तो अब इन्ना से मल्टीप्लाई करो, इन्ना हामिदन, इन्ना जो है हरफे नस्बिन वो तौकीदिन रहने से हामिदन इसमें इन्ना बन गया, और बकिया पार्ट जो है ये अपनी, इसको क्या बोलेंगे हम? ये मुजाफ मुजाफ इलैह ना? मुतालिक है। अच्छा ये मुदाफ, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल जो है अमामा, जरा एक सेकंड रुकिए आप। अमामा बिल्कुल उसी ताबील पे आएगा जैसा जार मजरूर की शक्ल में आता है। ये मुदाफ मुदाफिले नहीं है, ये बिल्कुल हरफे जर की तावील में आता है, हरफे जर की तरकीब में आता है। ये मुदाफ मुदाफिले नहीं होता, कि तो ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब तकरीबन हर जर के मानिंद होता है।
समझ में आया? यहाँ पे का कोई आ रहा नहीं ना, सामने टीचर के साथ, ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसमो इल्ला कौन है? हामिदन, हामिदुन। और यहां पर क्योंकि अपने पास खबर नहीं है, ये मुताल्लिक़ है खबर है। चलिए फिर पढ़िए, हामिदुन था यहाँ, बोलो क्या है ये? हामिदुन। अभी इल्ला को मत देखो, हामिदुन हो गया। हामिदुन जरा गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं एक एक पूछूंगा, आप बोलेंगे। हामिदुन यहाँ पे क्या है? मुब्तदा है। तो मुब्तदा से पहले उसकी अपने को एराबी हालत बताओ। मुब्तदा हमेशा रफा में हालत में होता है और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो दोनों भी चीजें मिल गई। अब ये हामिदुन को भूल जाओ, भूल गए ना, भूल जाओ। मैं जो टेक्निकल बातें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ये हामिदुन को भूल जाओ, गए? अब यहाँ पढ़ो क्या है? हाँ, ज़हबा बोले तो क्या भाई, लेंगे दो फेलुल मादी। अब ये ज़हबा के अंदर हुआ मुस्ततिर है, हुआ का ज़मीर जो है वो छुपा हुआ है, जो कि फाइल है, तो हुआ गया, हो गया। क्योंकि अपने पास में जो 14 सिगे है माजी के, उसमें से 12 सिगों में ज़मीर मारिद होती है, मिलती है, लेकिन 2 सिगे ऐसे होते हैं, एक मुज़क्कर का मैंने पहला और मुअन्नस का चौथा। हुआ और हिया की ज़मीर कैसी रहती है? छुपी हुई रहती है। 2 तरीके से आ सकती है, वो छुप कर आ सकती है या फिर जाहिर आ सकती है। बोलो बोलो क्या हो सकती है? तो यहाँ पे ज़हबा हामिदुन भी आ सकती है, अब यहाँ तो नहीं है वो, तो यहाँ पर कौन छुपा हुआ है? हुआ। तो बोलो फिर माजी, हाँ, ज़मीर, मुस्ततिर, फाइल, हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ इसको देखना ही नहीं, ये नहीं है, यहाँ से यहाँ तक देखने का। हाँ, वो गया, ज़हबा तो निकला गया, इलल मस्जिदी, वो गया मस्जिद के तरफ, ठीक है। तो अब ये पूरा मिलकर जुमला फेलिया है, यहां से आता कौन है? तो ये जुमला फेलिया है, नहीं के बाद में आपका काम है, इसको आपको कंफर्म करना पड़ता है। आयत बोलते, आयत का मतलब है इसके अंदर हुआ की ज़मीर है, कौन है? और वो इससे मैच होना चाहिए, किससे मैच होना चाहिए? हामिद से, मुब्तदा से। तो आपको पढ़ने का है, पैसा पढ़ने का है। अभी ये हामिद दो नहीं समझो, यहाँ पे ये नहीं, बोलो हामिद वो गया उधर मदरसे की तरफ, समझ आ गया? बात समझ में आ गई? हामिद बोलो पहले, उन्हें गया मस्जिद की तरफ। तो अपन कैसा पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे कैसा? देखो, हाँ, ज़हबा में फाइल और फेल मिलकर, बोलो जुमला फेलिया बन रहा है, और इलल मस्जिदी मुताल्लिक़ फेल हो रहा है, और ये पूरा जुमला फेलिया, बोलो, खबर बन रही है, खबर हुई, और अपनी खबर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इसलिए बन रहा। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, सिस्टमैटिक। चलो जी जी, हामिदुल मरफू है और मारिफा तो मुब्तदा है। अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब यहां से यहां तक आ जाओ, ये क्या है? वर्ब है, माजी का फेल है, और इसके अंदर ये किसकी? हुआ की ज़मीर है, 14 सिगों में से पहला है। ज़हबा या ज़हबत आए तो दोनों की भी ज़मीर छुपी हुई होती है या इस्म ज़ाहिर होती है। बाकी के 14, बाकी के जो 12 रह जाते हैं ना, उसकी ज़मीर निकलती नहीं बाहर, उसकी ज़मीर उसके साथ ही बारिद रहती है। देखो पहले बोलो, ज़हबा, ज़हबा तो नहीं गया, ठीक है, ज़हबत वो नहीं गई। अब दो कल ज़हबा, यहाँ पे अलीफ बता रहा, दो जा रहे हैं। अब ये दोनों का शक्ल नहीं दिखने वाले, ज़हबू वो सब ये भी दिखते नहीं। अब यहाँ पे ज़हबता दो होता है, ये भी बाहर निकलती नहीं ज़मीर, और ये ज़हबना
ये भी जमा है, निकलते नहीं बाहर। और ये ज़हबता, तू गया, अब तू गया तो जमीन पे कोई, अब इसमें नहीं आएगा। ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुना, ज़हबतु ज़हबना। तो ये 2 है, 14 में से कितने निकलते बाहर? 2। तो दोनों में क्या होता है? ये तो मुस्ततिर होते हैं या इसमें जाहिर होते हैं। ये टेक्निकल बात जरा धीरे धीरे मैं गियर बढ़ा रहा हूं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या बोलो? मुब्तदा को छोड़ देना, इसका आपने एराब डिसाइड करो। इसका फाइल कौन है? हुआ है। अच्छा, जितने भी ज़मायर है वो क्या रहते हैं? मबनी रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, हुआ है तो हो गया। इतने जगह पढ़ो, उन्हें गया, उन्हें गया, किधर गया? फिर पढ़ते रहे हाँ में उन्हें गया मस्जिद की तरफ। ये पढ़ने का तरीका है, इसको लुगत के तरीके से अंदाज से अपन जैसे रोज की जबान पढ़ रहे वैसा पढ़ना है। हाँ में उन्हें गया, और अपना जो नॉर्मल बात कर रहे हाँ में गया, ठीक है। लेकिन टेक्निकली क्या है? हाँ में इसके अंदर हुआ है, उन्हें गया। अब लगाओ इन्ना, बेशक हाँ में उन्हें गया मस्जिद की जानिब। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जुमला फेलिया खबर की शक्ल में आ रही है। ये खबर अपने मुब्तदा से मिलने के बाद जुमला इस्मिया तैयार हो। बात समझ गए? ओके है? तो चलो बोलो भला, इसका इसमें इन्ना कौन है? इसमें इन्ना कौन है? हामिद। और खबरो इन्ना कौन है? ज़हबा इलल मस्जिद। जुमला फेलिया खबर है, ठीक है। जुमले फेलिया खबर बनकर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमले इस्मिया बन रहा। जुमले इसमें माशाअल्लाह। अब आ जाओ यहाँ, फिर यानी इन्ना को छोड़ दो। हामिदुन अखूहु तबीबुन, हामिद को छोड़ दो। अब ये पढ़ो, अखू बोले तो भाई, हाँ उसका भाई क्या है भाई? डॉक्टर है। तो ये इतना टुकड़ा देखने का है यहाँ से अखूहु से तबीबुन तक का, यहाँ में को फिलहाल बंद कर दो। तो अखूहु जो है ये मुब्तदा बन रहा है और मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा है, ठीक है। तो ये मुदाफ हो गया अखू और हु हो गया। तो ये रूल क्या है? देखो, एक रूल याद रखो, इस्म को जब भी कोई भी मुत्तसिल ज़मीर लगेगी तो मुदाफ मुदाफ रहता हूं। तो बोलो उसका भाई है डॉक्टर, तो हामिद उसका भाई डॉक्टर है। अब देखो यहाँ बोलो, अखूहु और तबीबुन मिलकर ये बन रही है खबर, जुमला इस्मिया बन रहा है खबर, और ये खबर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया बड़ा बन गया। और अब इन्ना लाएंगे अपन, इन्ना हामिदन अखूहु तबीबुन, बेशक हामिद बोलो उसका भाई डॉक्टर है। वो बाद में ये आपकी रोज की जबान, बोल की जबान बोलते, इसको बोलने की जबान ऐसी टेक्निकल अरब ऐसा बोलता, हामिद उसका भाई डॉक्टर है। कुरान में ऐसी चीज के मायने भी तो, जैसे अपन बड़े बड़े जुमले पढ़ेंगे ना फिर आपको समझ आएगा। बोलो बेशक हामिद, समझ में आया? तो इन्ना का इसम कौन है? हामिद। इन्ना की खबर कौन है? अखूहु तबीब। ये देखो, मैं आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जुमले इसलिए लाया कि साथे साथे तो कोई भी कर लेगा। फिर से एक बार चलते हैं पीछे, पूरा करते आते हम लोग। हाँ, यहां से आप तो मुफरद से जब मिल गया तो इन्ना मोमिनीना, क्यों आया भाई मोमिनीना? बताओ मेरे को, कोई बताएंगे मुझे ऑनलाइन पे? इन्ना होता है सर इन्ना लग गया इस वजह से वो नस्बी हालत में आ गई। शाबाश। इन्ना की वजह से मोमिनू क्या था? मोमिनू था, अलमोमिनु। तो क्या बन गया? अलमोमिना। यहाँ आ जाइए,
ये तस्निया था, क्या था ओरिजिनली? हाँ, तस्निया मोमिनाने था। मिनानी इल्ला में आ गया मोमी, मीना यहाँ पे मोमिनूना था, मोमिनूना इल्लाने से मोमिनूना। ये तीनों भी याद रखो, क्योंकि आगे चल के जब बड़े बड़े जुमले आएंगे तो ये आपको नहीं कैच करेगा, तुम्हारे को पकड़ लेगा। फिक्र मत करो, बहुत बार बताएंगे हम इसको। अब यहाँ पे क्या करें भाई, इन्ना से अल इंसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक अलग जुमला है, इन्ना के साथ अंता था, अंता जो है रफा हालत में था, तो उसको नस्बी करे तो क्या बोल इन्ना का। समझ में आ रहा सबको अभी? जी और यहाँ पे ये चारों में ये मुफरद मुफरद है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। इन्ना दाखिल होने से मुब्तदा को तब्दील करके इस्मो इन्ना बन गया और ये खबर इन्ना बन गया। यहाँ पर तरीका ये था, जुमले इस्मिया है, हामिदुन फिल फसली, हामिदुन मुब्तदा था, फिल फसली मुताल्लिक बिल खबर था। तो यहाँ से इन्ना ने अटैक करके हामिदन कर दिया। यहाँ पे भी उसी तरीके से हामिदन अमामल मदरसत मदरसी मदरसी, ठीक है। मदरसा मदरसे के साथ, हामिद है मदरसे के साथ। और ये याद रखो, ये ज़र्फ है, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि के सर का नहीं चलता, ये बिल्कुल हरफे जर के तावील में चलता, हरफे जर के हुक्म में चलता। ताहता, अमामा, खल्फा, ठीक है, ये तमाम लोग इसी तरह से। और ये हामिदुन ज़हबा इलल, हामिदुन था, ये हामिदन हो गया। और यहां से यहां तक का खबर है जो जुमला फेलिया है। और यहाँ पे हामिदुन इस्म, ये जो अपना जुमला इस्मिया का इस्म है, और ये खबर बन गई जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया इससे मिलकर दोनों मिलकर इस तरह से अटैच। पढ़िए, अलमाओ बारिदुन, पानी है ठंडा। देखो यहाँ पे पेश दिख रहा, ये मुब्तदा है, मारिफा है, रफा हालत पे है, और ये अपनी नकीरा हालत पे है, ये भी रफा हालत पे। इन्ना दाखिल करेंगे हम इसके अंदर तो माँ मुंह से क्या बन गया, ये मुब्तदा जाकर बन जाएगा अभी इस्म इन्ना, और खबर बन जाएंगी खबर। इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे अल किताबु था, किताबु था, इसके ऊपर इन्ना दाखिल होने से अल किताबा बन गया, इसलिए इसको बोलेंगे इस्म इन्ना। और जदीदुन इस पर असर नहीं करेगी इन्ना, ये है हमारी खबर। खबर है। अब धीरे धीरे हो रहा है, अंदाज आ रहा है? आप देखिए, हाँ, इन्ना मुरासीला, रिपोर्टर, रिपोर्टर जो अपने पास में न्यूज़पेपर का रिपोर्टर रहता ना, वो है न्यूज़पेपर रिपोर्टर। शुजाउन, बड़ा हिम्मत वाला, शूरवीर। हाँ, इन्ना वाक़वात है, इन्ना। अब ये अन्ना आ रहा जो है ना, इन्ना का दूसरी बहन आ रही है, इन्ना की नंबर 2 की बहन आ रही है, अन्ना। अब हम होते ना इंग्लिश में कोई भी चीज बताते रहे दैट लगाते हैं, अब ऐसा है के होते ना, मैंने सुना के, मैंने जाना के, तो ये अन्ना के बताता है। जरा ये पढ़िए, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद अब समझ में आया क्या? ये फोकस में लाने के लिए, ताकत से बोलने के लिए अन्ना आता है के। और जब इन्हें आ जाएगा तो इन्ना के माने इसने भी क्या करा, मोहम्मद दर कर दिया। मोहम्मद दन है तो पढ़ने का मोहम्मद दर रसूलुल्लाह, ये इसमें मोहम्मद को नसब में ला लिया, किसने, अन्ना ने।
आप देखो ये पढ़िए, शहीदो अन्नर रसूल। अब शहीदो, हम शहादत देते हैं कि रसूल हक पर है। वो सब गवाही देते हैं, वो है ना, वो सब गवाही देते वो सब गवाही देते हैं कि रसूल हक पर है। रसूल है। हैं, रसूल हाँ। हक पर है। अब इल्ला की और एक बहन बता रहा हूँ, इल्ला वफ़ा का और एक बहन है का अन्ना, उर्दू में से बोलते हैं गोया के, इंग्लिश बोलते हैं एज इफ, अरबी बोलते जनों का ही, जैसा का ही, जैसे के, तशबीह देते हैं ना सादी जुबान में, इंग्लिश में सिमिलिट्यूड, सिमिली, एनालॉजी, मेटाफोरिक बोलते हैं। हाँ देखो, का अन्ना क्या है, तशबीह है की चीज है। ये तशबीह का मतलब गोया के बताने के लिए है। देखो, शम्स का मतलब क्या है भाई, सूरज, आग, सूरज है आग। ये है हमारा सादा जुमला, जुमला इस्मिया। ये हो गया मुब्तदा, मारिफा, रफा हालत पे, और ये खबर नकीरा, ये दोनों मिलकर जुमला इसमें बन गया। अब इनके ऊपर का अन्ना दाखिल कीजिए, सूरज है गोया के हाँ, तो अपन बोलेंगे ना, सूरज है जैसे कि गर्मी के दिनों में अगर जाएंगे आप मक्का को जाएंगे या फिर सऊदी में चले जाएंगे तो 48-49 डिग्री चलता रहता, तो जब बोलना है हाँ। तो कान्ना दाखिल होने से शमसा हो गया, शमसू से शमसा बन गया, शमसा क्यों बना भाई, इस पे कान्ना कौन हो गया, शमसा, खबरों कान्ना क्या हो गया, नार। ऐसे जैसे के सूरज है बिल्कुल सूरज है बिल्कुल। अब ये आ रहा है इन्ना वफ़ातु अन्ना का दूसरी शक्ल, लाकिन्ना, किसी चीज को बोलकर उसको दुरुस्त करते हैं हम, लेकिन अब मैंने कहा कि हामिद है बहुत सही, लाकिन्ना वो है बहुत सुस्त। और उदाहरण क्या करके सुस्त रहेंगे, अब समझेंगे नहीं, ऐसी पलटी मारे अपन ने। हामिद इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी, लेकिन को लाकिन बोलते शदीद। हाँ देखो, लाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीदुन, लेकिन अल्लाह का अजाब है बहुत सख्त। अब हमारा ला अल्लाह के दो मीनिंग होते हैं, आई होप या आई डाउट, ये और माइक दोनों में चल सकता है, मैं आपको आगे चल के बात में बताऊंगा। बोलो दाइमुन, नेबर, नेबर, नेबर है नींद में, नाम बोल तो नींद थी ना, हाँ, तो पड़ोसी है सोया हुआ। अब आपने खट्टा मारे उसके घर पर और आपको ऐसा गायब गुमान हो रहा है कि उन्हें नींद में, तो बोलो ला अल्लाह ला लल जा रहा नाइमुन, समझ में आया, आई होप ही इज asleep। अच्छा लो, ला अल्लाह के अपन जो कुरान में बहुत आता है, ये देख करो, ला अल्लाहु, हाँ बोलो, ला अल्लाहु मतलब उम्मीद है कि वो, ला अल्लाहुमा वो दोनों, ला अल्लाहुम वो सब, ला अल्लाहा मुमकिन है वो। अच्छा, ला अल्लाहुमा दो औरतें, ला अल्लाहुन्ना, ला अल्लाका, ला अल्लाकुमा, ला अल्लाकुम,
لعلکم تعقلون، قرآن میں لعلکم مفلحون، لعلکم تشریحون، تاکہ یہ تاکہ نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم ایسا کرو۔ اور میرا یہ کہنا ہے آپ سب سے کہ جب بھی آیت میں لا اللہ آتا ہے آخر میں آتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہے بتا رہا ہے ڈائریکٹ، یعنی کہ وہ نچوڑ ہے پوری، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارگیومنٹ پیش کری ہوئی ہے اس کا نچوڑ ہے لا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ لا اللہ کو جتنی جگہ آپ کو قرآن میں دکھے گا اس کو ایک یلو مارکر لے کے مارکنگ کر کے رکھو، وہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت آپ کو بہت پیار سے عزت سے بول رہے کہ یہ کر لینا، آپ کو بولتے ہیں نا بچے کو، کیا بولتے بیٹے یہ تو کر لینا، امید کرتا تو کرے گا، یعنی کہ حکم ہے، وہ محبت کا حکم ہے، لعلکم مفلحون، امید ہے کہ آپ فلاح پا جاؤ۔ لعلکم تفلحون۔ تو لا اللہ کا اسم کون ہے؟ الجار، اچھا، اور لا اللہ کی خبر کون ہے؟ حافظ صاحب نے کو روکا وہاں، لئیتا، لئیتا کا کاش، تو آدمی جب آخر کو کافر لوگ پہنچ جائیں گے دوزخ میں تو وہاں بولیں گے کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے کہ میں پھر سے جاؤں اور پھر سے ایک بار زندگی بتا لوں۔ ہاں، مٹی کیوں نہیں بن گیا میں، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کاش کہ میں مٹی ہوتا، سمجھے کہ نہیں؟ کاش یعنی کہ آپ کی ٹرین چھوٹ گئی تو آپ بول رہے کاش میں جلدی آ جاتا، یہ ڈینجر ہے۔ لئیتا یاد رکھو، لئیتا جب بتا رہے کہ آپ کا کوئی چیز جو ہونی تھی وہ ہوئی نہیں، ہو گیا، ختم کرو میں، ہاں آپ سب ایک لاسٹ، آئیتو میتو، وہ مرے ہوئے واپس آ جاتے، جو مر گئے آپ ان کا سوچتے کاش یار یہ واپس آ جاتے۔ چلیے میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، حافظ صاحب کا کام رک جا رہا ہوں، کیا کروں میرے پاس ٹائم نہیں نا، میں زیادہ بہت ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن سمجھ گیا نا؟ تو یہ نوٹس میں آپ کے سب ہے، آگے لے کے پڑھ لو۔ سر کل واپس پڑھا دینا یہ۔ اس کے اوپر آیتیں لیں گے آپ، جنات جنت من تحت الأنهار تحتها الأنهار جنت کی بات بتائی جا رہی ہے، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاؤہم، کوئی بھی آیت جب بھی ہم قرآن کی پڑھیں گے
تو اس کو پڑھنے کے دو انداز ہے. پہلے اس کو دیکھنا ہے تجوید کے مطابق اور اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے گرامر کے مطابق. تو یہاں پر ایک آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے, ہم سب سے پہلے اس کو تجوید کے مطابق چیک کریں گے. ٹھیک ہے, جملے کی شروعات ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ابھی تک کے جو تجوید کے قواعد ہم نے سیکھے وہ تمام ایزی ہے اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. حروف مدہ کے, حروف لین کا, اور 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر اگر جزم آ جائے تو کون سا قاعدہ ہو رہا؟ قلقلہ کا. آواز میں ایک قسم کی ٹکراؤ آ جائیں گے, ایگو آواز ہو جائیں گا. تو اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلی لائن میں وہ 5 حروف ہے کہ جن کے اوپر وہ ساکن اگر آ گیا تو قلقلہ کا قاعدہ ہوتا. کہاں پر آ رہا وہ؟ جیم کا دال کے اوپر عدن. دال کے اندر دال کے جب تلفظ کریں گے تو آواز میں ٹکراؤ آ جائیں گا, زبان ٹکرا کے واپس آئیں گی. عدن, عدنن, عدنن, عدنن. ٹھیک ہے, اور کہیں ہے نہیں ہے. نیچے والی لائن میں تجری من تحتها الانہار خالدین, یہاں پر کہیں ہے وہ 5 حروف قاف طا با جیم دال. تج, تج, جیم آیا یہاں پہ, جیم ساکن ہے تو قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. تجری, تجری. اب تا کے اوپر حرکت ہے تو جلدی پڑھنا ہے, متحرک زبر, اور را کے نیچے زیر ہے, اس کے بعد یا ساکن ہے تو یا مدہ ہو جائے گا. تجری, تجری. اس کے بعد کہیں ہے 5 حروف میں جس کے اوپر ساکن ہے نہیں ہے. تحتی ہا ہے کیا؟ نہیں ہے. انہار نون ہے کیا؟ نہیں ہے. پکا نون نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی آیت سنائیے, صراط الذین انعمتا. وہاں پہ آواز کو دبانا ہے, وہاں اگر ٹکراؤ کریں گے آواز ٹکرا کے واپس نہیں آنا. انعمتا نہیں, انعمتا. تو نون حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے, تو کبھی بھی اس کے اوپر آواز نہیں ٹکرائیں گی, زبان ٹکرا کے واپس نہیں آئے گی. یہ ہو گیا. فیہا ابدا, ابدن. یہاں پہ کہیں ہے نہیں ہے 5 حروف میں سے. چلیے الحمدللہ. تو حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قلقلہ کا قاعدہ اس آیت میں 2 جگہ ہمارے پاس مل گیا. ایک تو جنات عدن اور دوسرا ہے تجری, جیم کے اوپر سکون آ گیا, جیم ساکن. اس کے علاوہ جو تنوین اور نون ساکن کے قاعدے جو ہم سیکھ رہے تھے, غنہ کرنے کے قواعد, اس میں سے جو 4 نام ہم نے دیکھے تھے وہ کون سے ہیں؟ چھپانا, اظہار کے معنی ظاہر کرنا, ادغام کے معنی مرج کرنا ملانا, اور اقلاب کے معنی بدل لینا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے ہم نے شروعات کرے تھے اخفا کی. اخفا کے معنی ہے چھپانا. تنوین اور نون ساکن کے بعد 15 حروف ایسے ہیں جو اگر اس کے بعد آ جائے تنوین اور نون ساکن کے بعد تو جب اخفا کا قاعدہ ہوگا. وہ 15 حروف اپن نے لکھ لیے تھے, اس کو یاد کرنے کا کر لیے ماشاءاللہ. سنائیے. ماشاءاللہ بہت بہترین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ علم میں اضافہ دے آپ تمام کے. اور کسی نے یاد کیے کیا؟ نہیں, کوئی بات نہیں. یاد اگر نہیں کیے تو کوئی بات نہیں, پڑھتے پڑھتے ہم انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے. پڑھیے. کبھی پڑھا بھی ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ یاد کیجئے, یاد کر کے 1-2 دن میں سنائیے آپ. تاسا, جیم دال, زال سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ 15 حروف ہے. یاد نہیں بھی کرے تو چلتا, ہم کو یاد کر کے کسی کو سنانا نہیں ہے.
हमको सिर्फ कुरान अच्छा पढ़ना है। जब भी वो हर्फ आ गया, अगर हम गुन्ना कर दिए तो हम कामयाब हो गए। हर्फ याद है और फिर भी गुन्ना नहीं किए तो फिर हम नाकाम है, फिर हम फेल हो जाते। कवायद मालूम रख के सही नहीं पढ़ना तो हमारे लिए पकड़ का जरिया बनता। कवायद नहीं मालूम लेकिन फिर भी अच्छा पढ़ रहे तो डबल अजर का बाइस। ठीक है, तो हमारा जो इख्फा का कायदा है, 15 हुरूफ किसके बाद आए तो इख्फा होगा? तनवीन और नून तनवीन और नून साकिन। मोटा अगर बोलेंगे तो नून साकिन के बाद, क्योंकि तनवीन के पीछे भी कौन छुपा हुआ है? नून साकिन छुपा हुआ है। अब देखेंगे हम यहाँ पे नून साकिन और तनवीन इस पूरे आयत में कहीं है क्या? जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम। इंदा ये नून है, पहला नून साकिन मिल गया। दूसरा उसके बाद मिन तनवीन आ गया। अदनिन के अंदर नून साकिन, तनवीन के पीछे नून साकिन छुपा हुआ है। उसके बाद है तजरी, नहीं है, मिन नून साकिन। अनहार, चौथा अनहार, मिन तहतिहल अनहारू है क्या कहीं? अनहार नून साकिन है नहीं, नून साकिन और तनवीन ढूंढना है हमें। खालिदीना नहीं है, फीहा अबदन पिया भी नहीं है, अबदा भी नहीं है। अबदन में तनवीन आ गई। तो नून साकिन यहाँ पे एक है, उसके बाद यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है। तनवीन इधर एक है, इधर एक है। तो टोटल तनवीन और नून साकिन मिला के इस आयत में 5 जगह आ गए। अब नून साकिन या तनवीन, उसके बाद हमको देखना है कि हमारे जो इख्फा के 15 हुरूफ है वो है क्या। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता, पढ़ना अगर अच्छा सीखना है तो। इंदा इख्फा है। उसके बाद जो हर्फ आया हुआ है वो कौन सा है? दाल है। दाल हुरूफ इख्फा में है क्या? ता, जीम, दाल आ गया। तो दाल आ गया नून साकिन के बाद, तो अब यहाँ पे क्या होगा? इख्फा हो जाएगा। गुन्ना करके पढ़ेंगे, नाक में आवाज को छुपा के पढ़ेंगे। तो अब उसका पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? इंदा, इंदा, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का भी कायदा है, तो आवाज को गुन्ना करके पढ़ना है। तो जन्नत के अंदर नून है और मुशद्दद है, तो यहाँ पे भी गुन्ना होगा। जन्नातु, जन्नातु। अच्छा एक सवाल, जन्नातु ये कौन सा इसमें? हाँ, अखब किया हुआ है, माशाल्लाह। अब ये मुजक्कर है कि मोहन्नस है? फिर मोहन्नस है। वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? वाहिद है, जमा है। जमा मोहन्नस। जन्नतुन, जन्नतानी, जन्नातुन, बहुत सारी जन्नतें। ठीक है, मुस्लिमातुन, तो वैसा ही है जन्नातुन। तो यहाँ पे अगर नून के ऊपर मुशद्दद आ गया, गुन्ना करेंगे जन्नातु अदनिन। दाल के कलकला के साथ आखिरी में नून के नीचे तनवीन है, 2 जेर आ गया, तो तनवीन के पीछे छुपा हुआ है नून साकिन। अब उस तनवीन या नून साकिन के बाद वाला हर्फ कौन सा है? ता है। ता हुरूफ इख्फा में से है, तो फिर गुन्ना होगा, हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जन्नातु अदनिन तजरी, अदनिन तजरी, जन्नातु अदनिन तजरी। अब उसके बाद आएंगे मिन। मिन क्या है जी? हर्फ जर है। मिन हर्फ जर है और मीम हर्फ जर है, तो उसके अंदर 2 हर्फ है जो मिन बना, मीम और नून। अब नून के ऊपर सुकून है, तो नून साकिन हो गया। अब नून साकिन के बाद फिर से हमको उसके बाद वाला हर्फ देखना है, क्या है यहाँ पे? ता है।
तो अब ता हरूफ इख्फा में से है गुन्ना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कैसा होगा गुन्ना? मिन तहतिहा, من تحتها मिन तहतिहा। من تحتها अब ये तहतिहा है और उसके बाद है अनहारू, अल अनहारू। الأنهار अल अनहारू ये इस्म जो शुरुआत हो रही है अलिफ लाम से, और अलिफ लाम वाला इस्म जब भी शुरू होता तो पहला हर्फ हमको देखना है कि वो हुरूफ शमसिया है कि हुरूफ कमरिया है। तो हुरूफ कमरिया है, कमरिया है, लाम के ऊपर में गुन्ना कौन सा साकिन शुरुआत है, कहाँ से हो रही है इसकी? अलिफ से शुरुआत हो रही है, हमजा से अलिफ इसकी से शुरुआत शुरुआत हो रही है। ये तो अनहार अलिफ लाम मारिफा बनाने के लिए लाया हुआ। अनहार शमसिया है। नहरें जमा, नहरुन अनहारुन। तो ये कमरी है, हमजा जो है अलिफ जो है वो कमरी है, इस वजह से ये लाम को पढ़ा जाएगा। अब ये लाम को जब पढ़ा जाएगा तो ये हा के ऊपर क्या है? जबर है, तो ये हा ये इस लाम से मिलेंगी, ये अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, ये लाम ड्रॉप हो, ये भी अलिफ ड्रॉप हो जाएंगे। तो अब बनेगा तहती हल अनहारू। फिर से हमारे पास नून के ऊपर क्या आ गया? जज़म आ गया, तो ये बन गया नून साकिन। अब नून साकिन के बाद का हर्फ कौन सा है? हा है। हा हुरूफ इख्फा में से है क्या? नहीं है, तो गुन्ना होगा? नहीं होगा। अनहारू तहतीहल अनहारू, तहतीहल अनहारू, मिन तहतीहल अनहारू, खालिदीना फीहा अबदन। अब यहाँ पे हमको रुकना है, तो रुकना है तो क्या कायदा होगा? एक दो हरकत जबर गिरा अगर आ दिया गए तो जाएगा, एक जबर के साथ अलिफ को पढ़ेंगे गिरा और उसको दिया खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के मिकदार। बड़ा तो अब क्या बनेगा ये? मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा, फीहा अबदा। नहीं भी खींच सकता, एक अलिफ के मिकदार लेकिन खींचना है। फीहा अबदा, ठीक है। ये हो गया तजवीद के मुताबिक। जहां भी नून साकिन हमको मिला तो हमको देखना है उसके बाद वाला हर्फ कौन सा है। अगर हुरूफ इख्फा में से है तो हम उसके ऊपर गुन्ना करेंगे, वो भी कौन सा गुन्ना? इख्फा वाला गुन्ना। अगर कोई दूसरा हर्फ है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक लाम रा और रा लाम नून, रा लाम और नून। तो एक मर्तबा इस आयत को फिर से पढ़ेंगे और आज फिर खत्म करेंगे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी, यहाँ तक पढ़ो। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, जन्नातु अदनिन तजरी, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, इसकी आप मश्क करेंगे ये पूरी आयत की, और कल हम इसको इंशाल्लाह ग्रामर के साथ देखेंगे, ठीक है। पढ़ने का जो अंदाज है ना कुरान पढ़ने का, बहुत ज्यादा तरस से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमको खवायद से पढ़ना है लेकिन, ठीक है। तरस बहुत अच्छी है, तजवीद के खवायद अच्छे नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है। सादे अंदाज में भी पढ़े तो चलता, लेकिन कवायद के मुताबिक, तजवीद के उसूल के मुताबिक पढ़ना है, ठीक है।
पढ़िए बिल्कुल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. माशाल्लाह, बेहतरीन. कौन सा? ये मद आय वाला है जी? मध्य नहीं, ये जो मद आया मध्य मुत्तसिल है वो. मुतसली जुड़ी हुई मद है सर. अलिफ के बाद फिर अगर अलिफ आ गया या फिर हमजा आ गया तो फिर वो उसको मद लगा के उसको खींच के पढ़ते. उसका कायदा हम सीखेंगे, मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल दोनों को भी हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होता, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए. सर जो जॉलिन है जी दौलिन पढ़ने से मना किया है, तो फिर जो जी. जौ है और वो जो जौद है, इनका तलफ़्फ़ुज़ सेम तो है. ज़ौद दौलिन का जो दौद है और वो जी जो जी जौ है, जुल्म वाला जौ, तो जी. सेम है ना? नहीं, ये जो एक है ज़ौ और एक है ज़ौद. ये जो ज़ौ है इसका जो तलफ़्फ़ुज़ होगा वो जबान की नोक से होगा. जैसा हम सा पढ़ते सा, जबान की नोक और बाहर के ऊपर के जो दो दांत है, ठीक है, तो वो उन दांतों को टकरा आवाज जुबान लगा के वहां से हम सा पढ़ते हैं, सा. और उसके जैसा कौन सा है? दाल. और सेम उसी का वही तलफ़्फ़ुज़ पे ये पढ़ेंगे ज़ौ, ज़ौ. और ये है ज़ौद. जबान के साइड वाला हिस्सा वो लगेगा ऊपर, दाढ़ के ऊपर, ऊपर की जो दाढ़ है वहां पे लगी ज़ौ. तो ये ज़ौ है और ये ज़ौद है. DW ज़ौ. ये ज़ौ और ज़ौद के अंदर फर्क है. और कोई सवाल? DW हाँ ज़ौ. चलिए रुकेंगे यहाँ पे. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.